Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our chapter number 2 and in the today's lecture we will start our chapter number 3 and the name of the chapter is how state government works. So let's get start the topic. But before start our main topic, we will learn about the three levels of the government and their roles. So do you remember the three levels of government in your standard 6? So yes, central government. There are three levels of the government: central government, state government and local government. Then, central government makes laws for the entire country. State government makes laws for the specific to their own state and local government makes laws for the cities and villages. गवर्नमेंट के थ्री लेवल्स होते हैं इन आवर इंडिया एंड तीनों का डिफरेंट रोल होगा. फर्स्ट बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्री के लिए सेम लॉस बनाएंगे और ये लॉस को हमें सभी को फॉलो करना होगा. स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए लॉ बनाएगी. जैसे गुजरात, तो गुजरात का लॉ अलग होगा, महाराष्ट्र का लॉ डिफरेंट होगा. तो ये एक स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही लॉ बना सकती है. एंड लोकल गवर्नमेंट इट मेक्स लॉज फॉर सिटीज एंड विलेजेस. ये केवल सिटीज और विलेजेस को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए ही लॉ बना सकती है. सो सिचुएशन है यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड एंड वाटर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन योर सिटी. So which level of the government can solve this problem? The drains are clogged. Drains means जो गटर है ये clog काफ़ी भर गई है और वाटर ओवरफ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो आप किसको कंप्लेन करोगे कि आप किसको कहोगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा लोकल गवर्नमेंट को, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी है कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Then situation number 2, an epidemic or disease has spread throughout a state. So which level of the government can solve this problem? कोई एक particular state है जहाँ पर कोई एक disease है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सॉल्व कर दे गवर्नमेंट? सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट की प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करेगा स्टेट गवर्नमेंट. Then third situation है the street lights in your area and city are not working. So which level of the government can solve this problem? So right answer होगा local government, because it is the responsibility of local government. Then fourth condition, another country has attacked our country. सिचुएशन ऐसी है कि जो अदर कंट्री है इसने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया. सो which level of the government can solve this problem? So right answer होगा central government, because जो external affair होगा ये central government handle करेगी. Fifth condition, the state transport buses of Maharashtra cause a lot of pollution. So which level of the government can solve this problem? So this is the situation of Maharashtra state. That's why it is the responsibility of Maharashtra state government. Sixth condition, an international sports meet must be organized in the country next year. So which level of the government can solve this problem? This is the external affair. That's why this is the responsibility of central government. So that's why हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विथ इश्यूज दैट अफेक्ट द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करेगी जो होल कंट्री को लागू होगा. सेकेंड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट डील्स विथ इश्यूज दैट अफेक्ट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को संभालेगी, स्टेट के जो भी इश्यूज है इसको सॉल्व करने का काम करेगी. And local government deals with issues that affect their villages, districts or cities. And local government
सबसे स्मॉल स्केल पे काम करेगी, लाइक विलेजेस में कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, सिटी में प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने का काम होगा लोकल गवर्नमेंट का. Now I will start one animated video, so please watch carefully. Elections to State Legislative Assembly. We keep hearing about elections. Have you ever wondered what these elections are for? Whom do we elect? Elections play an important role in a democracy. India is a democratic country where people elect their representatives to govern the country. To serve us most effectively, our government is split into 3 levels, and each level has its own elected representatives. The central government is responsible for the governance of the entire country. The state government is responsible for the governance of the state or territory. The local government represents your city, town, or village. These 3 levels work closely with each other. In this video, we will learn about the structure of the state government. Every state has a legislative assembly. Elections are held once every 5 years to elect representatives for the state legislative assemblies. For the purpose of elections, each state is divided into parts called constituencies. People elect one person from each constituency to become a member of the Legislative Assembly or an MLA from that constituency. These MLAs belong to different political parties. Some people are also elected as independent candidates in the elections. A party that wins more than half the total number of seats in the Legislative Assembly forms a state government. The leader of the party with the majority is chosen as the Chief Minister. The Chief Minister then selects other MLAs from the party to form the Council of Ministers. The Chief Minister and other ministers are responsible for running various government departments or ministries. Together, they work for the development of the state. This is how the state government is elected. The people have an important role to play in electing a good government for their state. So I hope you understood very well from the animated video. Then let's move to practice question 6.1. So question is, who is the MLA from your constituency? Which party does he belong to? So यहाँ पर हमें हमारे महुआ के बारे में लिखना होगा. So who is the MLA from Mohua? So Mr. R.C. Bhai Makwana is the MLA from our constituency. यहाँ पर आपको मिस्टर सुनील शर्मा नहीं लिखना है, आपको लिखना है मिस्टर आरसी भाई मकवाना, द एमएलए फ्रॉम महुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड विच पार्टी डज ही बिलोंग टू. तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ही बिलोंग्स टू द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा. सेम आपको कॉपी नहीं कर देना है कि मिस्टर सुनील Sharma is the MLA from my constituency and he belongs to Indian National Congress. आपको हमारे महुआ के बारे में लिखना होगा आरसी भाई मकवाना and he belongs to भारतीय जनता पार्टी. Okay, then let's move to our next topic and it is the election results of the Himachal Pradesh Legislative Assembly 2003. अब हम क्या देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन कैसे होती है. सो लेट्स मूव फर्दर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लुक एट द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 2003. 2003 की लेजिस्लेटिव असेंबली थी और हिमाचल प्रदेश का ये रिजल्ट है. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 43 सीट्स, भारतीय जनता पार्टी गॉट 16 seats, then independent candidates were 6, then Himachal Vikas Congress got 1 seat and Lokatantrik Morcha got 1 seat in the Legislative Assembly election 2003 and total seats was 67. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको सबसे ज़्यादा 43 सीट्स मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 16 सीट्स,
देन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 6, देन हिमाचल विकास कांग्रेस जिसको केवल एक ही सीट मिली थी, एंड लोकतांत्रिक मोर्चा जिसी को भी एक ही सीट मिली थी और टोटल सीट थी 67। So based on these election results, answer the following questions. Which political party would become the ruling party and who would form the opposition? So answer है कि the total number of seats in Himachal Pradesh legislative assembly is 68. Majority means more than half of 68 means majority कैसे डिसाइड होती है कि जितनी भी सीट है इसका हाफ करके उसका एक ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स 68 है तो इसका हाफ होगा 34, और 34 से अगर एक सीट आपको ज़्यादा है तो आपकी पार्टी मेजोरिटी में है। सो मेजोरिटी मीन्स मोर देन 34 सीट्स फॉर दिस केस। So, to become the ruling party, any political party needs more than 34 seats. The Indian National Congress got 43 seats. Therefore, it would become the ruling party. So, according to the majority rule, हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टी जिसको 34 सीट से ज़्यादा वोट्स मिले हैं, 34 सीट से ज़्यादा सीट्स मिली है, तो ये रूलिंग पार्टी बनेगी। और इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस गोट 43 सीट्स और उसको मेजोरिटी के लिए चाहिए मोर देन 34। दैट्स वाई इट वुड बिकम द रूलिंग पार्टी इन दिस केस। Then second question, who would form the opposition? Opposition को कौन फॉर्म करेगा? रूलिंग पार्टी तो हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट ऑपोजिशन में कौन होगा? सो द इलेक्टेड members from the rest of the parties like the Bharatiya Janata Party, independent candidates, then Himachal Vikas Congress and लोकतांत्रिक मोर्चा वुड फॉर्म द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को फॉर्म करेगा जो भी बाकी के बचे हुए सीट्स के मेंबर है, लाइक भारतीय जनता पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, हिमाचल विकास कांग्रेस के मेंबर और लोकतांत्रिक मोर्चा के मेंबर। So since the Bharatiya Janata Party won the second largest number of seats, it would form the main opposition party. हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 18 सीट मिली थी और ये नंबर में सेकंड नंबर पे था, तो दैट्स वाई it would form main opposition party in this election. Then the chief minister of the state, so leader of the ruling party becomes the chief minister. जो भी रूलिंग पार्टी में से कोई एक लीडर होगा ये चीफ मिनिस्टर बनेगा। आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि रूलिंग पार्टी में से ही ऑलवेज चीफ मिनिस्टर होगा। सो इन 2003 मिस्टर वीरभद्र सिंह फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस became the chief minister of हिमाचल प्रदेश। तो 2003 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे वीरभद्र सिंह, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो आई होप आपको इलेक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया होगा। देन फॉर्म फ्रॉम एमएलएस टू मिनिस्टर, मिनिस्टर कैसे फॉर्म होगा? सो फ्रॉम अमोंगस्ट द एमएलएस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी he chose a few to take care of various state departments. The MLS became the ministers. फिर क्या होगा? जो भी कोई लीडर पार्टी के MLS है, ये सभी कोई एक डिपार्टमेंट्स को चूज करेंगे। मीन्स उसको कोई डिपार्टमेंट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सो दैट्स वाई इस सिचुएशन में एमएलए बन जाएंगे मिनिस्टर, लाइक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। सो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, टोटल पॉइंट हम देख लेते हैं कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन द स्टेट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहले इलेक्शन हो गए, देन क्या होगा? द पार्टी विंस द मेजोरिटी ऑफ वोट्स बिकम्स द रूलिंग पार्टी। जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी ये पार्टी होगी रूलिंग पार्टी। देन द रेस्ट ऑफ द पार्टीज फॉर्म द ऑपोजिशन एंड बाकी के जो भी मेंबर्स है ये ऑपोजिशन बनाएंगे। देन द लीडर ऑफ द पार्टी विद द मेजोरिटी वोट्स बिकम्स द चीफ मिनिस्टर एंड
पार्टी में से जो मेजोरिटी पार्टी है इसमें से जो भी लीडर होगा ये चीफ मिनिस्टर बनेगा एंड चीफ मिनिस्टर चूजेस some MLAs to head different departments like the MLA becomes मिनिस्टर। सो अब क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर है ये कुछ एमएलएस को चूज करेगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट उसको सौंप देगा और इसी तरीके से एमएलए भी बन जाएंगे मिनिस्टर। Then let's move to practice question 6.3. So the image below represents the results of a state legislative assembly election. Look at the image carefully and answer the questions that follow. So ये क्वेश्चन आपकी सप्लीमेंट्री बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको सिर्फ फिलअप करना है इन योर सप्लीमेंट्री बुक एंड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इससे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो इसके आंसर भी हमें लिखने होंगे। So first of all in this picture we can see that different colors that shows some party like party number 1 it is in a saffron color like orange color so number of seats it is 27 ये आप सर्कल गिन लेना जो ऑरेंज कलर के सर्कल है ये टोटल है 27 मैं आपको सीधा आंसर देना चाहता हूँ सो पार्टी नंबर 1 होगी ऑरेंज कलर की और इसके मेंबर्स हो गए 27। देन पार्टी नंबर 2 ग्रीन कलर में जो है ये पार्टी नंबर 2 होगी और टोटल हमें 6 सर्कल देखने को मिल रहा है सो इसकी सीट्स होगी 6। देन पार्टी नंबर 3 जो पर्पल कलर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये पार्टी नंबर 3 है और टोटल 4 सर्कल है दैट्स वाई नंबर ऑफ सीट्स इज 4 एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो ब्लू कलर में हमें देखने को मिल रहे हैं इसके टोटल मेंबर्स हो गए 3। देन लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस सो विच पार्टी हैज द मैक्सिमम वोट्स हमने देखा पार्टी नंबर 1 हैज द मैक्सिमम वोट्स बिकॉज ही गेट्स 27 वोट्स। देन व्हाट डू यू थिंक will happen to rest of the parties the independent candidates who won so they will form the opposition in the legislative assembly जो भी रेस्ट ऑफ द पार्टीज है और जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो जीते हुए हैं ये ऑपोजिशन को बनाएंगे और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी होंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3। Then let's move to practice question 6.4. So read the imaginary election results given below and answer the following questions. In this situation, we can see that party 1 got 50 seats, then party B got 38 seats and others got 5 seats. Total seats are 93. So first question, who will form the government? गवर्नमेंट कौन बनाएगा? सो इजीली आंसर क्या है कि पार्टी नंबर 1 बिकॉज ही गॉट मेजोरिटी नंबर्स। देन वो विल फॉर्म द ऑपोजिशन तो यहाँ पर आंसर आएगा पार्टी बी एंड अदर्स बिकॉज दे डिड नॉट रीच टू मेजोरिटी दैट्स वाई दे फॉर्म ऑपोजिशन। Then let's move to second situation and in this box we can see that party 1 got 60 seats, party B got 75 seats and others got 3 seats and total seats was 138. So question है कि who will form the government? In this box we can see that party B was reached to majority that's why party B will form the government. Then who will form the opposition? So party A and others will form the opposition because they did not reach to majority. Then let's move to last part of the chapter and it is the working of the government. So the working of the government involves both the people and the government. So first of all in this picture we can see that people elect the government and government इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट द वर्क डन। ये एक साइकिल है कंटिन्यूसली चलती रहती है कि पीपल है गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे और सेकेंड है कि गवर्नमेंट है ये पीपल को इन्फॉर्म करेगी अपने वर्क के बारे में। सो द व्हाट इज द रोल ऑफ द पीपल? सो पीपल कन्वे देयर नीड्स
and opinions to the government through multiple channels such as opposition. The role of the opposition is to make government accountable for its actions. So रोल ऑफ पीपल, पीपल का रोल क्या है कि ये गवर्नमेंट को अपने नीड्स के बारे में बताएंगे और ओपिनियंस के बारे में भी कन्वे करेंगे। सो ये कन्वे हम तीन चैनल के द्वारा कर सकते हैं। पहले तो ऑपोजिशन, ऑपोजिशन क्या करेगी, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएगी। मीन्स कोई भी एक्शन है वो काफ़ी ठीक है तो ऑपोजिशन इसका सपोर्ट करेगी, कोई भी एक्शन पीपल के लिए अच्छी नहीं है, पीपल को अपोज करेगी, तो इसके बारे में ऑपोजिशन ये विरोध करना स्टार्ट कर देगी। देन मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन बुलेटिन्स कन्वे द गवर्नमेंट द जनरल ओपिनियन ऑफ पब्लिक। मीडिया रिपोर्ट का काम क्या है कि ये न्यूज़ बनाएंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि पीपल का ओपिनियन क्या है आपके ये डिसीजन के बारे में। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस, they are held by the government to inform the public about their work and answer any questions they may have. Then government press conference भी करती है, people को inform करेगी कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है और आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं इसके आंसर क्या होंगे। तो ये तीन चैनल है जो पीपल का रोल है कि ऑपोजिशन ये भी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को हम हमारा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा भी हमारा मैसेज ओपिनियन गवर्नमेंट तक कन्वे होगा एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा गवर्नमेंट हमें इसके आंसर देगी कि हमने अब तक क्या क्या किया है। Then what is the role of the government? The government works for the welfare of the people by launching different laws, schemes and programs. Government का main role क्या होगा कि ये people के welfare के लिए काम करेगी by launching different laws, schemes and programs. Like laws and schemes की बात करें, different schemes and laws are made from time to time for the welfare of the people and beneficial programs. The government also launches special welfare programs for better health and education. Then let's move to practice question 7.1 and it is based on NCERT. So directly मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। So working of the government, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें मेन आइडिया रिप्रेजेंट करना है और इसके बारे में डिस्कशन भी करना है। सो मेन आइडिया क्या होगा, द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द इश्यूज ऑफ द पब्लिक। दे कैन रिस्पॉन्ड आइदर बाय एन ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर और बाय अ न्यू लॉ मेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट को पब्लिकली सबको रिस्पॉन्स देना है। जो भी कोई इश्यू होगा तो गवर्नमेंट इसका आंसर देगी और कोई भी मैटर इसके बारे में पब्लिकली किसी को जानना है तो गवर्नमेंट उसको आंसर देगी और इसीलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में लॉ भी बनाना होगा। आइडिया ये है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस वेज such as newspapers, TV channels and other organizations that talk that about government's work. After the discussions of problems in Patalpuram district in the state legislative assembly, a press conference was organized by the health minister to address the people's questions through the reporters. And the chief minister also visited Patalpuram, announced the compensation for the families who had lost their relatives and said that a high-level inquiry committee would be set up to look into the needs of the district and provide sanitation facilities and clean drinking water. Then the working of the government involves the chief minister and other minister taking action to solve the people's problems through various departments, and they are also supposed to answer the questions in the legislative assembly as they are accountable to the people. The media plays an important role in discussing these issues and government must respond. The government can also make laws so that the state can deal with the issues of the people. And last, in a democracy, people elect their representatives and are
main authority. The ruling party forms the government and ministers head the various departments that are responsible for implementing the laws made by the legislative assembly. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.1 का आंसर है। आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमारा डेमोक्रेसी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर द एवरी क्वेश्चन। हम कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं वाया न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। देन एक प्रॉब्लम हमने देखा पातलपुरम डिस्ट्रिक्ट का कि यहाँ क्या हो रहा था, और इसका आंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने दिया कि हमने क्या किया। तो चीफ मिनिस्टर ने पातलपुरम में विजिट की और अनाउंस किया कि जो भी फैमिली लॉस्ट हुई है, जिसका कोई रिलेटिव्स मर गया है, तो उसके लिए कंपेंसेशन गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। एंड जो भी कुछ सिचुएशन हुई है, यहाँ पर हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाएगी और प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी। प्रॉब्लम ये थी कि पातलपुरम में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, जिससे कई सारे पर्सन की डेथ हो गई थी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट इंक्वायरी बिठाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और जो भी कुछ लॉस्ट कोई हो गए हैं तो उसको गवर्नमेंट कंपेंसेशन भी देगी। द नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट में हम बात करें चीफ मिनिस्टर और उसके अदर मिनिस्टर होते हैं, तो ये सभी पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। देन हम उसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और दे आर अकाउंटेबल फॉर द गिविंग आंसर, ये हमें आंसर भी देंगे। मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेमोक्रेसी। मीडिया क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है उसके ऊपर डिस्कस करेगी और पीपल को समझाएगी कि गवर्नमेंट के डिसीजन का क्या इम्पोर्टेंस है। देन हम बात करें कि डेमोक्रेसी में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और ये हमारी मेन अथॉरिटी होती है, तो ये सभी हमारे लिए काम करेंगे। हमने उसे इलेक्ट किया है, दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्क्स। Then let's move to practice question 7.2. You have to directly fill up your answer in your supplementary book. So आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को कौन अकाउंटेबल ठहरा सकती है, गवर्नमेंट को कौन सी ऐसे चैनल है जो क्वेश्चन पूछेगी गवर्नमेंट उसको आंसर देगी, ये सभी वेज को आपको इंडिकेट करना है इन दिस आंसर। तो आपको आंसर में दे देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल होगा वोटिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑन द राइट साइड पीछे से स्टार्ट हुआ है VOTING। देन सेकंड है मिडल में एक मीडिया रिपोर्ट्स नाम का एक बॉक्स है, आपको ये बॉक्स अपनी सप्लीमेंट्री बुक में बनाना होगा। ऑन द फोर्थ लाइन वी कैन सी दैट मीडिया रिपोर्ट्स। देन ऑन द सिक्स्थ लाइन वी कैन सी दैट ऑपोजिशन, ये उल्टा है, आपको पीछे से स्टार्ट करना होगा OPPOSITION। एंड उसके नीचे हम देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी एक वे है जिससे हम हमारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं। सो PRESSCONFERENCE, तो आपको ये डायरेक्टली फिलअप करना होगा इन योर सप्लीमेंट्री बुक्स। So this is about our today's lecture. In this lecture we have completed our chapter number 3 and the name of the chapter is How State Government Works. So I hope you understood very well about all the points, all the topics from the chapter number 3, and if you have any doubts regarding all the points you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move to our chapter number 4. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.